ہیلو. کہاں سے شروع کروں میری باتیں؟ کیا بتاؤں میں؟ یار ایک بندہ ہوتا ہے نا جو ہمیشہ لوگوں کے بیچ میں رہا ہوتا ہے، دوستوں کے بیچ میں صبح شام انجوائے کیا ہوتا ہے، گھر پہ رہتا ہے، ہنستے کھیلتے کودتے مستی کرتے، اور وہ جب کہیں کام لگ جاتا ہے، نوکری لگ جاتا ہے، تو وہ گھر سے باہر دور چلا جاتا ہے. گھر پہ ہوتا ہے تب اسے ایسا لگتا ہے کہ بس گھر پہ میں پریشان ہو چکا ہوں، گھر سے باہر نکلوں، باہر کی دنیا دیکھوں، گھوموں، کھل کے لائف جیوں اپنی مرضی سے، جو کرنا چاہے کروں، اکیلا رہوں. اصل میں یہ سب فالتو باتیں ہیں. وہ اسے تب تک ریئلائز نہیں ہوتی جب تک وہ اس سچویشن میں پہنچ نہیں جاتا. مجھے بھی لگتا تھا گھر سے دور مزے ہوں گے، مرضی سے رہوں گا، گھوموں گا، اور جب باہر نکل گیا، نوکری پہ آ گیا، جہاں کوئی نہیں ہے، اکیلا، شام کو 7-8 بجے تک کام پہ، اور اس کے بعد میں روم پہ اکیلا. گھر والوں سے دوستوں سے بات بھی کر لوں تو گھنٹے بھر میں ساری باتیں ہو جائیں، اور بات کروں تو کیا کروں یہ بھی سمجھ نہیں آتا. اور اس کے بعد میں اکیلا ایک دم. بھائیوں، دوستوں، میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ گھر پہ ہو، جتنے مستی میں موج میں دوستوں کے ساتھ میں، جو تمہارے کالج کے دوست ہیں، اسکول کے دوست ہیں، محلے کے دوست ہیں، گھر ہے، کزنس ہے، ان کے ساتھ میں چاہے آپ چپ چاپ بیٹھے رہو ان کے بیچ میں، پر جو سکون وہاں چپ چاپ بیٹھے رہنے کا، ان کے بیچ میں کچھ نیا بولنے کا، صرف سننے کا، بس کسی کے پاس میں ہونے کا، جو اصلی مزہ ہے وہ باہر کام پہ اکیلے میں نہیں ہے. چاہے کتنا ہی پیسہ کما لو، کتنے ہی پیسے ہو اڑانے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے، کتنی ہی چھوٹ ہو، کتنے ہی مزے ہو، ایسے لگتا ہے مزے ہوتے ہیں. جب پڑھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تب ایسا لگتا ہے کہ بس یہی دکھ ہے، یہی اسٹرگل ہے، بے روزگاری، اس سے باہر نکلیں. پر اصل میں وہ گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جوانی کا. جیسے اسکولنگ کا پوری لائف میں جیسے بچپن ہوتا ہے، اسکولنگ وغیرہ، جہاں کوئی ٹینشن فکر نہیں ہوتی ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں تب اپنے کالج میں بھی مستی کے ہی دن ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے لیے، اور زیادہ تر ہوتے ہی ہیں مستی کے. پر جب کالج سے باہر کمپٹیشن میں پہنچتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس یہاں جیون کا نرک شروع ہو گیا ہے. پر وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو ایسی جگہ پوسٹنگ مل جائے جہاں سے آپ کا گھر 700-800 کلومیٹر دور ہے، آپ گھر جانا چاہو تو بھی 24 گھنٹے لگے. چھٹی لے کے جاؤ تو آدھی چھٹیاں ایسے لگتا ہے جیسے گھر جانے میں ہی ختم ہو گئی. تو کیا ہی بولوں. نوکری لگنے کے بعد مزے نہیں ہوتے، بس آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو. میں بھی جب سٹاف کے ساتھ ہوتا ہوں، کام پہ ہوتا ہوں، تب انجوائے کرتا ہوں خوب. ساتھ میں ہوتے ہیں، اچھا دن کٹتا ہے، کام ہوتا ہے، بزی رہتے ہیں، سمے کا پتہ نہیں چلتا. پر اس کے بعد
रूम पे आके सारा दिन फ़ोन चलाते रहना। 2 दिन छुट्टी आ जाए तब, एक दिन की संडे की छुट्टी आ जाए तब सारा दिन कुछ नहीं होता। और फ़ोन पे कितनी ही देर बात कर ले किसी से, बहुत औखा होता है, मुश्किल होता है। तो जो भी स्टडी कर रहे हैं, घर पे हैं, उनसे यही कहूँगा कि बस खुश रहो यार। अभी तो इतनी भी टफ नहीं है ज़िंदगी, आगे और ज़्यादा बुरे हालात होंगे। अगर आपने वो पल एंजॉय नहीं किया तो आगे पछताओगे कि काश मैं फैमिली में थोड़ा और खुल के रहता, चिड़चिड़ा ना रहता, बातचीत करता, दोस्तों के बीच में क्वालिटी टाइम, दोस्तों के बीच में 5 मिनट हो चाहे 50 मिनट हो, क्वालिटी टाइम ही होता है। मस्त एकदम झकास टाइम, जिसमें फालतू की बातें करते हैं। काम की बातें करें तो वो क्या टाइम, काम की बातें तो दोस्तों के बीच होती ही नहीं है, फालतू बातें ही होती है। और वही सबसे मतलब की बातें होती है, ज़रूरी बातें। तो वो भी कीजिए वो बातें दोस्तों के साथ, शाम को ज़रूर टाइम दीजिए, घूमिए। घूमने में मुझे लगता था बाहर निकलूंगा, अलग अलग जगह घूमने जाऊंगा, पर मैं 2-3 जगह घूम के आया हूँ, इतने में मेरे घूमने का सुरूर ठंडा हो गया है एकदम। घर पे होते हैं तब बाहर घूमने का, जाने का भी मज़ा होता है। अब घर से बाहर ही है और यहाँ क्या घूमने जाए। रूम पे भी नहीं रहने का मन करता, ना ही बाहर कहीं जाने का मन करता। काम पे जाते हैं तो छुट्टी का इंतज़ार रहता है कि छुट्टी वाला दिन कब आएगा, वही स्कूल वाली कहानी। और जब छुट्टी आ जाती है तो छुट्टी वाले दिन ऐसे निकलते हैं कि बस जल्दी से मंडे आ जाए, काम पे जाएं, क्योंकि यहाँ तो अकेले ही पड़े रहना है, कम से कम स्टाफ के साथ तो होंगे। और शायद मंडे को भी जाने का मन इसलिए करता है क्योंकि स्टाफ अच्छा है या स्टाफ के साथ बॉन्डिंग अच्छी है। मानो कि अगर आप बाहर हो 500-700 किलोमीटर दूर, जहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है और आपका स्टाफ भी अच्छा नहीं है, मतलब आपकी बॉन्डिंग नहीं बन पाई है। स्टाफ सभी अपनी जगह अच्छे ही होते हैं, बस अपने कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आपको ऐसे लगेगा क्या जीवन है व्यर्थ, सुबह उठो दौड़ो भागो शाम को, सुबह से शाम तक, और शाम को वापस वही फ़ोन में घुस जाओ। क्या मतलब है ऐसी ज़िंदगी का। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता किसी को, और नहीं कर रहा हूँ। हर किसी का परसेप्शन ऑफ लाइफ अलग होता है, काम को लेकर, लोगों को लेकर, लाइफ को लेकर। मेरा ऐसा है कि मैं हमेशा अब तक फैमिली के बीच में रहा, दोस्तों के बीच में रहा। मेरा दिन का 3-4 घंटे दोस्तों के साथ घूमने और फालतू बकवास करने, खेलने, इसमें बीतते थे। कम से कम 3-4 घंटे थे, ये ज़्यादा भी हो जाता था कभी कभी तो 7-8 घंटे दिन के अंदर। दोपहर को मिल लिए, शाम को मिल लिए, पार्टी कर ली। मिल लिए क्या, रूम था दोस्तों का पास में, दोस्त का, वहाँ पे सभी दोस्त इकट्ठे हो गए, ये ले आए ड्यू, ये ले आए मिक्सचर, चल वही हो गई पार्टी। ये मिठाई ले आए 2 प्रकार की, खा ली, हो गई पार्टी। अब ये सब चीज़ें पड़ी है, पैसे है। उस टाइम तो पैसे भी नहीं थे, ऐसे थे 20 तेरे पास है, 30 मेरे पास है, 50 उसके पास है, ऐसे पार्टी होती थी। जोड़ के 150 रुपये हुए, 50 का नमकीन ले आ और 100 की ड्यू ले आ, पार्टी हो गई। अब पैसे हैं खाते में, कहाँ लगाए। अकेले तो कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता। कहाँ डेली ड्यू पी लेते थे, डेली मिक्सचर खा लेते थे, कुछ नहीं, एकदम मस्त चिल रहते थे। अब ड्यू सामने पड़ी रहती है, कोई साथ में पीने वाला नहीं, खाने वाला नहीं।
और खाने पीने ऐसी चीज़ों पार्टियों का मज़ा तब आता है इन नमकीन्स का कि सामने कोई साथ में एक दो जने हो कम से कम जिनके साथ हंसी ठिठोलियाँ करते हुए, तब वो स्नैक्स अच्छे लगते हैं। अकेले में क्या खाए बंदा, सारी चीज़ें हैं पर कुछ खाने का मन नहीं। अकेलापन अंदर ही अंदर खा जाता है इंसान को। चलो, पर ये तो है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। पहले सिर्फ मैं फैमिली से रुपए लेता था, अब मैं देता हूँ सामने से, सपोर्ट करता हूँ फैमिली को, फाइनेंशियल सपोर्ट। हाँ, नौकरी लगने की ये खुशी होती है कि घर वालों से पैसे मांगने की बजाय मॉम डैड को और को पैसे दूं। 10-10 20-20 रुपए का सोचना नहीं पड़ता। आज पैसे होते हैं पास में कि कुछ करना है, खाना है। घर जाऊं, मैं छुट्टी पे गया था पीछे महीने पहले, दोस्तों से मिला, खर्चा भी किया। अच्छा लगा कि हाँ, ऐसे पार्टी की, सब खुश मस्त एकदम। ज़्यादा टाइम नहीं, 2 महीने ही हुए हैं। 2 महीने बाद मैं घर गया था, तीन नौकरी लगने के। तो अच्छा था वहाँ, मैं मेरे पास थे खर्च करने के लिए। पर क्या पैसा ही सब कुछ है? पर ये भी तो नहीं है कि पैसे के बिना रहा जा सकता है। एक टाइम के बाद में सभी वैसे भी दूर दूर हो ही जाएंगे। कोई अपनी लाइफ में भाग दौड़ में कहीं बिजी होगा और कोई कहीं, कोई नौकरी लग गया है जैसे अब मैं लग के हो गया हूँ दूर, वैसे ही धीरे धीरे वो भी अपने रास्ते पे निकल जाएंगे। बट आई रियली मिस those days। इंग्लिश भी बोलने नहीं आती, बस निकल जाती है ऐसे ही। बहुत मिस करता हूँ उन दिनों को। मस्त थे दिन, अच्छे थे, बहुत अच्छे। इतना खालीपन तो नहीं था, अकेलापन भी। ऐसे करते करते शादी हो जाएगी, फिर शायद अकेलापन दूर हो जाएगा। क्या सपने हैं तेरे, बच्चे हो जाएंगे हैं। ये अकेलापन तो दूर हो ही जाएगा, कहीं नज़दीक पोस्टिंग मिल जाएगी, अप डाउन हो जाएगा घर से। हाँ, नज़दीक पोस्टिंग मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। कम से कम एक दिन की छुट्टी पे तो घर पे जा सकूँ। इतनी दूर, इतना नज़दीक तो होना ही चाहिए, या कहूँ तो इतना दूर ही होना चाहिए जहाँ से मैं रात को गाड़ी में बैठूं और सुबह घर, और शाम को वहाँ से वापस चढ़ूं और काम वाले दिन सुबह काम पे। तो ज़िंदगी के भी मज़े हैं फिर। ऐसे 850-900 किलोमीटर में क्या जीवन। अब अकेला बैठा फालतू में पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। इरिटेटिंग चीज़ें ही होती है वैसे फ़ोन में, और क्या होगा, इरिटेटिंग ही होगा, किसी को परेशान करने वाले या खुद परेशान होने वाले। हम्म। तो लास्ट में यही कहूँगा कि नौकरी लगना, काम लगना, तैयारी करना, सब ठीक है, जायज़ है, करने ही पड़ेंगे। जीवन में हर दौर से गुजरना पड़ेगा। बट जो तुम्हारे पास टाइम है अभी, घर पे हो, इंजॉय करो उसे। जहाँ छोटे जन्म से लेकर छोटे होते हैं तब दोस्त बनते हैं, खेलते हैं, आसपास के लोगों में, माहौल में समय के साथ ढलते हैं, उसकी बराबरी कोई भी जगह नहीं ले सकती। आप चाहे कहीं चले जाओ, पर जो आपका बर्थ प्लेस है वो हमेशा सबसे ऊपर होता है, सबसे अच्छी जगह होती है वही।
चाहे आप कितनी भी अच्छी जगह और एकदम फेमस जगह चले जाओ, पर जहाँ आपका जन्म हुआ है, जहाँ आप बड़े हुए हो, कितनी यादें होती है आपकी। आपका बहुत ही जैसे दिल का ज़रूरी हिस्सा उसमें होता है। तो रिस्पेक्ट करो उन सब चीज़ों की, एंजॉय करो, फैमिली को, दोस्तों को टाइम दो, उनके साथ टाइम बिताओ, बैठो, सुनो, उनके बीच में बैठ के बोलो नहीं, फिर भी सुनो बैठ के। कोई कुछ कह दे तो उसका ज़्यादा दिल पे लोड मत लो, क्योंकि कोई होगा अपना, वो कुछ ना कुछ तो कहेगा, वरना आप गली में गली गली पे खड़ो, कहीं सड़क पे बैठो, कहीं रास्ते में आते जाते लोग तुम्हें कोई कुछ क्यों ही बोलेगा। दैट्स ऑल।